Okay, today we'll start with power. You know power, what is meant by power? Power is defined as the rate at which work is done. Yes or no? Yes, sir. You know this from your early classes. The rate at which, power is the rate at which, right? The rate at which work is done. Correct? Yes or no? So let if an amount of work is dw, small amount of work dw is done in a time interval of dt, right? Then average power is equal to how much? That is dw by dt, rate of work done. Yes sir, no students. और अगर मैं एसआई यूनिट ऑफ बात करूं पावर की, तो वर्क का यूनिट क्या है? जूल. टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड, राइट? सो दैट इज जूल पर सेकंड. एंड जूल पर सेकंड इज नोन एज व्हाट इन कंबाइन watt? Yes or no? Symbolized by W, and in the name of the scientist James Watt, correct? So 1 watt means how much? 1 joule per second. All those basic things you know, just to remind you. So 1 watt means 1 joule per second. If a person does 1 joule work in 1 second, then we can say that he's having a power of 1 watt, correct? And अगर instantaneous power की बात हो, if it is all about instantaneous power, there is P is equal to dW by dt, correct? Rate of change of work done. And students, you know already W is equal to Fs. That means small amount of work done dW is equal to how much? If a constant amount of force is given F, then F dot ds. Yes or no? Okay, and you know velocity is equal to how much? Rate of change of displacement ना, ds by dt. है कि नहीं students? सो जो हमने ये मिला था P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो डी डब्ल्यू के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? F डॉट डी एस बाई डी टी. And ds by dt, you know what? Velocity. Force into velocity. ds by dt is velocity. So you can write power is equal to how much? Force into velocity. You can write or not? Understood, students? Students, work and energy are equivalent. Yes or no? Change in kinetic energy is equal to work done, you know. The work and energy are closely related. More general definition of power is that the rate of energy transfer from one body to other body. At what rate the energy is transferring, that is also known as power. Getting the thing or not, students? So sometimes you can also write power is equal to the rate of energy transfer. एक particular interval of time पे कितना energy एक body से दूसरी body तक transfer हो रहा है, that can also be told as power. And power is equal to how much? Work done by time. Finally मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया power average is equal to how much? Work done by time, correct? Yes or no? And that is power is scalar. Power is a scalar quantity. Power is a scalar quantity. Keep on writing. और सीजीएस यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? जूल के बदले में अर्क. टाइम तो सेकंड है ना सबके लिए, तो सीजीएस यूनिट ऑफ पावर कैन बी अर्क पर सेकंड, करेक्ट? और पावर की बहुत सारी यूनिट है, जैसे कि किलोवाट. किलोवाट यू नो हाउ मच? 1 किलोवाट मींस हाउ मच वाट? 10 टू द पावर 3 वाट, है कि नहीं? मेगावाट स्टूडेंट्स यू नो? Yes, मेगा मींस 10 टू द पावर 6, है ना? वेरियस यूनिट्स. yes, sir. और एक हर्ट्ज पावर यू आल्सो नो. कमर्शियल यूनिट पे कभी कभी मतलब हर्ट्ज पावर, दैट इज एचपी. मोटर की रेटिंग में that is 746 watt. So these are the basic things that it is required to know. And at last, instantaneous power can be, students see, force is vector, velocity is vector. So two vectors are multiplied to get a scalar. So we can also write instantaneous power is equal to F dot V or FV cos theta. Or we can also write that is FV cos theta. When two vectors are multiplied, the result is scalar, then you can do scalar product or dot product, right? As power is a scalar quantity, but force and velocity as vector quantities, two vectors are getting multiplied to get a instantaneous power is P. Just write the notes.
few other points I'd like to add. जैसे कि आप लोगों को ये बताया गया कि पावर एवरेज इज इक्वल टू क्या है, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, है ना. And change in kinetic energy is also work done or not? Delta K, change in kinetic energy can also be written as work done, na? Do you remember or not? Half mv square final kinetic energy minus half mu square initial kinetic energy is equal to v square minus is equal to s, right? Do you remember or not? Kinetic energy, work energy. Yes, sir. So that is also work done. So we can sometimes also we can find power by knowing how much kinetic energy is changing per unit time or in a given interval of time, right? And you can also, for small values, you can also write P average is equal to how the instantaneous power is changing with respect to time by change in time, T minus initial time minus final time. Let the time is varying from 0 to T. If it is varying from T2, T1 to T2, then we can take the limit also from T1 to T2, correct? Getting or not? Or student, let हमें एक graph दिया गया है, right? Let we have given a graph of power, and in the x-axis time is taken. Somehow the graph will be of any shape. So the area under power time graph, power into time is what? Work done, na? Yes or no? Because P is equal to dw by dt, na? So area under power time graph will give what? Work. Is that clear to all? Area under power PT graph, right? Power time graph gives work done. Gives work done. Area under power time graph gives work done, correct? Yes or no, students? And already Yes, sir. P is equal to dw by dt. So you can also find dw. You want to find w, then we have to integrate dw is equal to integration of p dt. और कहीं पे अगर आपको वार्क का टाइम की स्लोप दिया गया है, लेट ये वार्क है और ये टाइम है, यहाँ से कैसे पावर निकालना है? कोई भी एक कर्व दिया हुआ है, तो कोई भी एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो हम tan थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं? सो स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट? Slope of work time curve gives instantaneous power. Gives instantaneous power. That is P is equal to dw by dt. That is equal to slope is tan theta. Is that clear or not? Yes, sir. Just note it. देखो कुछ बेसिक एग्जांपल्स मतलब एप्लीकेशंस ऑफ वर्क को हम डील करते हैं, राइट? एप्लीकेशंस ऑफ वर्क, राइट? एप्लीकेशंस ऑफ वर्क मतलब कुछ एग्जांपल्स को मैं बता रहा हूँ थियोरेटिकली, आप इसको दिमाग पे ठान लो, ठीक है? स्टूडेंट्स मान के चलो मेरे पास एक मशीन गन है, राइट? द पावर ऑफ ए मशीन गन, राइट? द पावर ऑफ a machine gun, right? The power of a machine gun firing n bullets. The power of a machine gun firing n bullets. N bullets, each of mass n bullets, each of mass m with velocity v. With velocity v in interval in a time interval t, right? In a time interval t, correct? है ना? तो स्टूडेंट्स पावर क्या होगा? Power of a machine gun is given by, so power is equal to work by time, yes or no? And here just now I told you power is equal to also change in kinetic energy by time, yes or no? This formula you remember? What is the total kinetic energy? Student, एक बुलेट का kinetic energy क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है ना? होता है कि नहीं? और यहाँ पर हमारे पास n बुलेट है, तो n बुलेट क्या हो गया? n by हाफ mv स्क्वायर by t, करेक्ट? तो अगर मैं इसको थोड़ा अगर लिख दूं तो इस तरह लिख सकते हैं n नंबर ऑफ बुलेट्स इनटू m इनटू v स्क्वायर बाय 2t. ये हो सकता है कि नहीं पावर?
समझ में Yes, आया? sir. अच्छा, इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स मान के चलो देयर इज ए क्रेन, राइट? ए क्रेन lifts a body, a crane lifts a body of mass m with constant velocity v, with constant velocity v from the ground. So its power will be how much, students? Force is given, velocity is given, so you can directly write na power is equal to F into V, है कि नहीं? तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो दिमाग पे ये सारी चीज पहले से होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, पावर ऑफ लॉन्ग्स, राइट? पावर ऑफ लॉन्ग्स of a body blowing whistle, right? Blowing whistle is, students, power is equal to how much? Change in kinetic energy by time ना? Yes or no? Let उसने क्वेश्चन पे दिया हुआ है हाफ mv स्क्वायर, मास यहाँ पर लिखेंगे, बट अगर उसने मास ऑफ एयर ब्लोन पर सेकंड मतलब m/t दे दिया ना उसने, राइट? मास हाफ इनटू मास ऑफ एयर ब्लोन पर सेकंड, क्योंकि m/t दे दिया और बाहर में v स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर ऑफ द लॉन्ग्स भी मिल जाएगा कि नहीं, अगर इस तरह की क्वेश्चंस आया? अंडरस्टैंडिंग और नॉट सिस्टी? Yes. Yes, sir. अच्छा, अभी अगर मैं पावर ऑफ ए हार्ट निकालूं, व्हाट इज द पावर ऑफ योर हार्ट? मतलब हार्ट कितना वर्क कर रहा है? हार्ट का काम क्या है? बेसिकली ब्लड को पंप करना, राइट? और एक प्रेशर में वो ब्लड को पंप करता है, राइट? राइट, पावर ऑफ हार्ट पंपिंग ब्लड, पावर ऑफ हार्ट pumping blood is, स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर, that is equal to pressure into volume of blood into volume of blood pumped per second. ये क्वेश्चन पे दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं, पम्प्ड पर सेकेंड, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी आपको मतलब अगर मैं दिखा दूं आपको, तो स्टूडेंट प्रेशर इज पी ना, इनटू वॉल्यूम पर सेकेंड वी बाय टी, करेक्ट है ना? एंड यू नो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, है कि नहीं? एंड वॉल्यूम बाय टाइम, करेक्ट? और एरिया को अगर वॉल्यूम के साथ मल्टी कैंसिल कर दो तो क्या मिल जाएगा मुझे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज वर्क बाय टाइम ना स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू पावर और नॉट? मतलब कहीं ना कहीं पे ये फॉर्मूला भी लिंक्ड है कि नहीं? दिस इज प्रेशर. मनीष, सूरज गेटिंग ना? अभिनव? Yes, sir. Yes, sir. टू वॉल्यूम, v इज वॉल्यूम नॉट वेलोसिटी, ठीक है? और पावर इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो वॉल्यूम के साथ कैंसिल कर देंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज वर्क बाय टाइम, दैट इज पावर. So you can find the power of heart pumping blood, right? है कि नहीं? Students getting ना? Yes, sir. अच्छा, तो इस तरह की हम कर सकते हैं. मान के चलो स्टूडेंट्स एक मोटर पानी उठा रहा है, राइट? राइट, इफ ए मोटर, देयर आर मेनी केसेस, बस फ्यू केसेस बता रहा हूँ और बाकी कुछ असाइनमेंट्स और क्वेश्चंस करते वक्त आपको मिलेगा, राइट? ए मोटर लिफ्ट्स वाटर from a well of depth h, from a well of depth h and with velocity v, and with velocity v, then power of the pump, right? Then power of the pump, correct? So that is how much, students? जब एक पर्टिकुलर हाइट को उठा रहे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी भी है उस पे हाफ mv स्क्वायर बाय टोटल टाइम t, करेक्ट ना? Yes. स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ना एवरीथिंग? अब तक जितना मैंने बताया कुछ डाउट है क्या एग्जांपल्स में, एप्लीकेशंस में? Let's see next, students. Position and velocity of an automobile with respect to time. Give heading.
position and velocity of an automobile with respect to time. Position and velocity of an automobile with respect to time. इस पे क्या करना है कि स्टूडेंट्स देखो, मान के चलो स्टूडेंट्स एक ऑटोमोबाइल है जिसका मास m है और ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, राइट? रेस्ट मतलब u इज इक्वल टू 0, रेस्ट से शुरू हुआ एंड इट्स इंजन सप्लाइज ए पावर p, है कि नहीं? मतलब लिख दो नहीं तो पूरा कॉन्सेप्ट, राइट? एन ऑटोमोबाइल, कीप ऑन राइटिंग, एन ऑटोमोबाइल of mass m accelerates, right? Accelerates starting from rest, accelerates starting from rest while the engine supplies constant power, while the engine supplies constant power, ठीक है? Its position and velocity changes with respect to time, right? Its position and velocity changes with respect to time, ठीक है? So that is how much student ऐसा दिया हुआ है, velocity you know, वेलोसिटी कैसे चेंज करेगा निकालते हैं, और पोजीशन कैसे चेंज करेगा, इतना क्वेश्चन में देके उसने ऑप्शन में छोड़ दिया कि कैसे पोजीशन एंड वेलोसिटी चेंज हो रहा है, राइट? स्टूडेंट्स देखो, आपको ये पता है ना कि मतलब फोर्स इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर, है ना? लेकिन नहीं स्टूडेंट्स? Yes. अच्छा, सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब डीवी बाय डीटी और नॉट, इनटू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू पावर पी, है ना? Yes. और अगर मैं यहाँ पर VDV निकालूं, अगर मैं इंटीग्रेट करूं V विथ रिस्पेक्ट टू DV इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P बाई M इंटू dt, कुछ गलत क्या? एक साइड पे ले आया मैंने, dt को उस साइड पे ले आया, पावर को इस साइड में डिवाइड कर दिया, राइट? है ना सूरज? Yes. गेटिंग और नॉट? और यहाँ पर VDV का इंटीग्रेशन क्या है? v स्क्वायर बाई 2 है ना, प्लस इज इक्वल टू P बाई M, बाहर है कांस्टेंट आ गया, और t का डेरिवेटिव क्या है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या है, t dt का t है प्लस c, है कि नहीं? समझ पे आ गया ना कि ये ना इंटीग्रेट करके हमने कैसे निकाले, राइट? Yes. अच्छा, इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, हाँ पूछो, एनी डाउट? ये वाला पार्ट एक बार रिपीट कर सकते हैं, लाइक m dv by dt into v is equal to p, यहाँ से इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ना, एंड एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसीलिए फोर्स की बदले में इसको लिख दिया मैंने, और वेलोसिटी था, वेलोसिटी को रख दिया, ओके सर। फिर मैंने v dv को एक साइड पे रखा और पावर बाय मास इनटू टाइम को दूसरी साइड पे ले लिया, और v dv का इंटीग्रेशन है v स्क्वायर बाय 2 एंड p बाय m इनटू t प्लस c1, राइट? तो ये तो आप पढ़ोगे vdv, मैथ्स में। हाँ हाँ, बताओ। vdv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, राइट? हाँ हाँ, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स में है ये, आ चुका हूँ, ठीक है? P बाई एम इंटू डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन T है, तो इसलिए इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, तो इसलिए हमने कांस्टेंट ले लिया C1, है ना? तो स्टूडेंट, as initially the body is at rest, right? Initially the body is at rest, तो body is at rest मतलब वेलोसिटी जीरो है ना उस टाइम पे, तो अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी के जगह में जीरो डाल दूं तो टाइम भी जीरो हो जाएगा ना, तो टाइम अगर जीरो हो जाएगा तो कांस्टेंट भी जीरो हो जाएगा, एक स्पेशल केस हमने लिए इसको। तो अगर मैं उसी टाइम पे अगर c को जीरो डाल दूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू pt बाई एम, लिख सकते हैं ना? एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2pt बाई एम लिख सकते हैं कि नहीं? और v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2pt बाई एम टू द पावर हाफ। उसका मतलब वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, t टू द पावर हाफ, वो वही ऑप्शन में दिया होगा। आउट ऑफ द 4 ऑप्शन यू हैव टू चूज वन, करेक्ट? Note this one students. Let's see how the position varies. जैसे हमने velocity को देख लिए,
ठीक इसी तरह पोजीशन को भी देख लेते हैं, राइट? तो हमें क्या मिला फाइनली, v इज इक्वल टू 2pt बाई m टू द पावर हाफ, है ना? And velocity is equal to how much, students? Rate of change of displacement, ds by dt, correct? Is equal to 2pt by m to the power half. तो अभी डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग ds उसी साइड पे ले लेते हैं dt को, that is 2pt by m to the power half into dt, इंटीग्रेशन, करेक्ट? और ये 2p by m कांस्टेंट है ना, उसको बाहर ले आते हैं, करेक्ट है ना? and integration of t to the power half dt, t to the power half dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, that is displacement s is equal to कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो 2p by m to the power half, x to the power n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x to the n plus 1 by n plus 1 ना, है कि नहीं? so t to the power 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus 1, है ना? ही plus c. so थोड़ा इसको अरेंज करके अगर लिखेंगे तो s कितना हो जाएगा, 2p by m to the power half into t to the power 3 by 2 into नीचे में जो 3 by 2 है वो ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, 2 by 3 हो जाएगा, गेटिंग ना, प्लस c. यहां तक किसी को समझ पे नहीं आया, जस्ट आस्क. कांस्टेंट ले लेते हैं क्योंकि वहां पर एक कांस्टेंट c1 लिए थे. एनी स्टेप यू आर हैविंग डाउट स्टूडेंट्स? शुभम, पुरव, ऑफलाइन पे आ जाओ कभी कभी, ठीक है? टेकिंग योर टाइम, यू समटाइम्स कम फॉर few minutes to clear all the doubts in offline mode, right? समझ पे आया कि नहीं? तो यहां से हम ठीक पहले की तरह निकालते हैं. तो अगर स्टूडेंट्स टाइम इज इक्वल टू 0 डाल दे तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 टू द पावर समथिंग, राइट? तो यहाँ पर c2 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो अगर हम डालेंगे तो फाइनली s इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो अगर मैं c2 को 0 डाल दूं तो 2/3, ये 2 आ गया बाहर, है ना? यहाँ पर 2/3 था, यहाँ पर 2/m है, तो बाहर आएगा तो 4 होके आएगा, यहाँ पर है 8/3. तो अगर अंदर पे ले जाऊं 2 को तो क्या लिखूंगा मैं, 8p by 9m, 3 को भी अंदर ले लिया, टू दी पावर हाफ बाय हाफ इंटू टी टू दी पावर बाहर में कितना रुक गया, 3/2 रुक गया ना स्टूडेंट? तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहा है इस ऑटोमोबाइल की केस में, ये क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, राइट? डिस्प्लेसमेंट s इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द 3/2 और यहाँ पर वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर हाफ. थोड़ा इसको याद रखना ताकि कहीं पे अगर क्वेश्चन इस तरह की आए, कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को फोकस कर सकते हो rather than deriving all the things, correct? Just note it.